today we are going to start with different arrangements in closed packing, that is a topic of solid state chemistry. So in this, different arrangement of atoms in closed packing structure is to be studied. So coordination number, this is the first thing here that we should know. The coordination number. What is coordination number? The coordination number is the number of atoms surrounding the central atom. The number of atoms surrounding the central atom. Like if this is a central atom, then the number of atoms surrounding this is coordination number. So in this example, 1, 2, 3, 4, 5. So there, for example, the coordination number is 5. So the coordination number, the definition is the number of atoms surrounding the central atom is called coordination number. So in this theory, this coordination number, this is very important. Now here the closed packing, different arrangements in closed packing. So there are one-dimensional closed packing, two-dimensional closed packing, and three-dimensional closed packing. But in this video, we only one-dimensional and two-dimensional closed packing we are going to study. So first is one-dimensional closed packing. In one-dimensional closed packing, the atoms are arranged in a single row. The atoms are arranged in a single row. No atoms are there above and below, back side and front side. Only one row. This type of arrangement is known as one-dimensional closed packing. Here, if this atom is considered, then there are two atoms are surrounded. There are two atoms are surrounding this central atom. So the coordination number is 2. Here the coordination number is 2. So one-dimensional closed packing is nothing more than this. Now two-dimensional closed packing. Two-dimensional closed packing. So in these atoms stacked on each other to form two-dimensional closed packing. So atoms are stacked in one row, then second row, third row, fourth row. So in many rows, but in two-dimensional only. So atoms stack on each other to form two-dimensional closed packing. But there are two possibilities for this. For two-dimensional closed packing, there are two possibilities. First is square closed packing, and second is hexagonal closed packing. So in square closed packing, this figure, look at this figure, the atoms of second row are exactly arranged on atoms of first row. If this is the first, if this is first, then second row atoms are on first row. If this is first, so atoms of second row is exactly stacked on the atoms of first row. So exactly over the below atom, the atoms are arranged. So why this arrangement is known as square closed packing? Because here the coordination number is 4. The coordination number is 4. Why? Because if this is the central atom, then there are 4 atoms surrounding it. 1, 2, 3 and 4. And if the centers of these 4 atoms are joined, then a square is obtained. And that is why this is known as a square closed packing. And the coordination number is 4. Now, the arrangement is of same. This and this. And numerous rows. But they are stacked in the same manner. So if this pattern, this row is A, then this is also A, this is also A, and this is also A. So the pattern of A type, as written here, the pattern in square closed packing is always A type. Now, the hexagonal closed packing. Here the different thing is, the atoms of second row are arranged in void of atoms of first row. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पे ये है, फिर ये दोनों के बीच में जगह है वहाँ पे ये है, फिर ये दोनों के बीच में जगह है वहाँ पे ये है. So the atoms of second row stand in voids generated by atoms of first row. So here
if this is A, then this is A. This and this are same, but this one is B and this one is B. So A B A B A B A B pattern. So the number pattern is A B A B. Now talking about coordination number. So the coordination number in hexagonal close stacking is 6. Now consider this atom as center atom. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 atoms are surrounding. By touching the central atom and by joining this all, the centers of all surrounding atoms, a hexagon is obtained, and that is why this close stacking is known as hexagonal close stacking. So according to our textbook, different arrangement in close stacking. The first is one-dimensional, two-dimensional, and in two-dimensional there are two possibilities: square close stacking and hexagonal close stacking. The next is three-dimensional close stacking. But we are going to study three-dimensional close stacking in next video. So till then, thank you. Hello students. In our previous lecture, we have studied about one-dimensional and two-dimensional close stacking. In two-dimensional close stacking, many rows are stacked on each other in two ways. This is A type and if the atoms of second layer are stacked or arranged in voids of first row, then it is A and B. So AB type close stacking arrangement will be obtained. Now in three-dimensional close stacking, as second and third means two-dimensional close stacking. In three-dimensional close stacking, many two-dimensional layers are arranged. This is one layer, behind the second layer, then the third layer. So many layers. इसके पीछे भी ऐसे आपको एटम्स दिखाई देंगे. सो बहुत सारे लेयर जो है वो अरेंज होंगे और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा. उसी को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल. उसके अंदर भी सेट टू डायमेंशनल के जैसे ए टाइप भी होता है और ए बी टाइप भी होता है. बाकी वो डिपेंड करता है कौन सा और कैसा स्ट्रक्चर है. कभी कभी ABC टाइप भी आपको देखने को मिलेगा. वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन इसके बाद जो नया जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक ये है कि जब ये अरेंजमेंट होती है, सो ड्यूरिंग दिस अरेंजमेंट सम वॉइड्स आर देयर. आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिखेगी और अगर पीछे है तो उसमें भी दिखेगी. बराबर ना. सो एक कांच का डब्बा लीजिए और उस कांच के डब्बे में अगर आप मार्बल्स अरेंज करते हो या मार्बल्स से उसको भर देते हो, फिर आप देखिए कि आपको मार्बल्स के बीच में भी ऐसे जगह देखने को मिलेगी, वैकेंट स्पेसेस, और वो मिलेगी. और इसी चीज़ को हमने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी में कि आपका एटम जो है वो कितनी स्पेस एक्वायर करता है. बराबर. सो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते चलेंगे. सो अरेंजमेंट के चलते ये जो जगह रह जाती है जिसको हॉरोनेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं और वॉइड्स भी कहते हैं, यही है हमारा आज का टॉपिक. और वो है वॉइड्स. दो टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बराबर. टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स के 4 एटम या 4 स्फीयर मिलके उसको बनाएंगे. कैसे? तो एक ट्राइंगल शेप में 3 जो है आपके मार्बल्स यानी स्फीयर्स बैठेंगे और उसके ऊपर एक बैठेगा और बीच में जो जगह बचेगी वो, जैसे कि मान लो कि ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है और ये तीसरा स्फीयर है. तो ये 3 स्फीयर कैसे बैठे हुए और अगर उसके ऊपर एक बैठता है. बराबर. सो यहाँ से जो ट्राइंगल बनता है
तीनों का जो सेंटर है उसको अगर हम जोड़ते हैं तीनों के सेंटर्स को तो एक ट्राइंगल मिलेगा, और फिर वो ट्राइंगल यू जुड़ा हुआ है, मतलब कि नीचे ट्राइंगल बनेगा और ऊपर पिरामिड के जैसे। ये जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है, जो जगह मिलती है खाली, उसी को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आप यूं भी उसको समझ सकते हो कि ये 3 सेंटर है, और जो बीच में यहाँ पे जो एटम होगा उसका सेंटर से अगर हम इसको ऐसे यूं और यूं जोड़ दें तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे, बराबर। मतलब कि एक ट्राइंगल आपका यूं होगा और दूसरा ट्राइंगल जो है वो उसके ऊपर ऐसे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और फिर जो बनेगा, मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये जो आपका बन रहा है, बराबर, तो ये इसको यूं भी कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाया गया है कि ये जो ऊपर का जो है, तो ये ऊपर का स्फीयर है, ये साइड वाला स्फीयर है, और ये साइड वाला, तो ये जो बना इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, बराबर। तो अगर 3 ऐसे हैं और उसके ऊपर 3 दूसरे अगर ऐसे लग जाते हैं, तो यहाँ पे बीच में जो बनेगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब कि ये एक आपका स्फीयर था, ये आपका दूसरा स्फीयर आ रहा है, ये तीसरा स्फीयर यूं जा रहा है, बराबर। अब इसके ऊपर अगर यूं एक स्फीयर है और एक स्फीयर यूं है और यूं है, तो ये जो आपको ये बना ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलकर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएंगे, बराबर। सो जितने यहाँ पे ये चीज खास ध्यान रखने वाली है कि जितने ऑक्टाहेड्रल होंगे उससे डबल हमेशा अरेंजमेंट में उससे डबल टेट्राहेड्रल होंगे। और ऑक्टाहेड्रल जैसे कि हम आगे पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं कि एटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल में और क्रिस्टल में, बराबर। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसका और आपकी अरेंजमेंट में जितने एटम हैं वो दोनों का नंबर हमेशा सेम रहेगा। सो नंबर ऑफ octahedral wires will always equal to number of atoms। जितने octahedral wires रहेंगे उतना ही एटम रहेंगे, बराबर। अब टेट्राहेड्रल कितने रहेंगे तो इससे डबल, बराबर। तो मान लो कि अगर हम इसको n कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n। तो इससे डबल टेट्राहेड्रल है, तो इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा 2n। कितने हो जाएंगे 2n, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल से डबल रहेंगे हमेशा, और ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बराबर। सो ये जो अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल में आपकी बुक में भी आपको दिखाई दिया होगा कि ये जो, हाँ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मान लो कि ये जो बीच का जो स्फीयर है उसके आजू बाजू में और 6 स्फीयर थे, ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, बराबर ना। कि अगर इसके ऊपर और एक लेयर है तो ये जो है तो इसके आजू बाजू में आपको ये 6 मिल रहे हैं, बराबर। अब इसके ऊपर भी दूसरे बैठेंगे, वो मान लो कि इस हिसाब से बैठे हुए कि जो टेट्राहेड्रल बना रहे, बराबर ना। तो ये जो स्फीयर है ये स्फीयर पूरा गोल होगा यूं, और उसके ऊपर 3 स्फीयर बैठे होंगे, समझिए। एक बीच का जो गोला है स्फीयर, उसके ऊपर 3 स्फीयर अरेंज है, ये जो है ये इसके ऊपर बैठे, उसके आजू बाजू में 6 है, और ये गोला जो उसका नीचे का जो पार्ट है उसके ऊपर और 3 होंगे। सो बीच में एक, ऊपर 3 नीचे 3 और आजू बाजू में 6। अगर ऐसा बनता है कि ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये है, तो ये और ये सेम हो जाएगा। अगर ये ए कहेंगे तो इसको बी कहेंगे, तो इसको भी बी कहेंगे, तो इसके नीचे क्या आएगा फिर से ए, इसके ऊपर क्या आएगा फिर से ए, तो ये ए बी टाइप होगा, बराबर ना। ये हमको जिंक एंड मैग्नीशियम जैसी जो मेटल्स है उसमें देखने को मिलता है। अगर इसको हम इन्वर्स कर दें तो ये बन जाएगा, बराबर कि ये अगर ये ए है तो उसके ऊपर जो आपका जो ये बैठा हुआ है ट्रायंगल में, तो ये बीच वाला है उसका जो ये है इसके ऊपर एक ऐसे बैठे हुए यूं 1 2 और 3, तो नीचे जो बैठेंगे वो उल्टे बैठेंगे,
तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, ये कैसे, ये ए बी सी है, तो अब नीचे क्या आएगा, ए, मतलब कि ये आ गया, तो ये किसके ऊपर बैठा हुआ है, इसके सेंटर के ऊपर, बराबर। और उसके नीचे क्या आएगा, बी आएगा, बराबर। तो नीचे का जो पार्ट है वहां पे क्या हो बैठा हुआ है, बी। तो ए जो है लेयर वो हमने बीच में रखा है कि जिसमें एक है और आजू बाजू में 6 है, उसके ऊपर एक बी है, तो नीचे क्या हो जाएगा, सी। तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी टाइप का एक पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, बराबर। ये आपको कॉपर और सिल्वर जैसी मेटल्स में देखने को मिलेगा। सो एफसीसी स्ट्रक्चर जो है हमारा, जिसके दो पार्ट पड़ते हैं, एचसीबी, बराबर, और सीसीबी। एफसीसी के दो पार्ट, एससीपी एंड सीसीपी। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर जो आपने पहले भी देखा हुआ है कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, बराबर ना, तो ये वो स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर आप NaCl का ये सेंट्रल एटम है, बराबर ना, और सेंट्रल एटम के साथ साथ आपको जो है यहाँ से एक Na का एक Cl का, एक Na का एक Cl का जो है वो मिलता रहेगा, वही ऐसे ही अरेंज होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम एफसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। सो आपका जो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, उसके ऊपर से 3 डायमेंशनल, उसके बाद में टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, फिर ये ए बी वाली जो है वो जिंक एंड मैग्नीशियम में, ABC वाली जो है वो कॉपर और सिल्वर में, और उसके बाद में एफसीसी में। ये आपका एक पूरा एक हो जाएगा। इसके ऊपर से क्वेश्चंस और MCQ दोनों आ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे थोड़ा पढ़ेंगे। थैंक यू।